आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से शनिवार को रिद्धि सिद्धि रिसोर्ट में हेमेटोलॉजी एवं बोन मैरो कॉन्क्लेव 2025 थर्ड चैप्टर का शुभारंभ हुआ। डॉ पंकज टांटिया की अगुवाई में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में सुबह 8 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और 300 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पैथोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड कैंसर के इलाज पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत पैथोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन पर लेक्चर से हुई। जयपुर की डॉ शशि बंसल ने बोन मैरो जांच को और बेहतर बनाने के तरीके बताए, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर डॉ रितिका अग्रवाल ने नई सीबीसी मशीनों के पैरामीटर्स पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पीबीएम हॉस्पिटल में इंस्टॉल नई मशीनों से बड़ी जांचों की जरूरत कम हो जाएगी और बीमारियां जल्दी पकड़ी जा सकेंगी। मुख्य वक्ता मुंबई बॉम्बे हॉस्पिटल के विभागाध्यक्ष एवं मुंबई हेमेटोलॉजी ग्रुप के अध्यक्ष डॉ एमबी अग्रवाल ने ब्लड कैंसर की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, ब्लड कैंसर आज जानलेवा और आम हो गया है। इसे नियंत्रित करने के लिए जांच सुविधाएं बढ़ानी होंगी ताकि मरीज को जल्दी पता लगे और इलाज संभव हो। Give you very good knowledge for resident doctors. I think comes here in the conference. They get very good knowledge from this conference. I congratulate all the teams that organized this conference. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Great vision, great visionary people, and I'm sure we will get a great things in future in our hospital. With this, I continue. Rekha will be here after. Now I would like to call upon the stage our Dr. Pankaj Tatia sir, Assistant Professor, Department of Medical Oncology. Because the platelets come and seal that hole. The reasons for low platelets could be that the platelets are being destroyed or the platelets are not being produced. When the platelets are being destroyed, young platelets come from the marrow, and the manifest will show you large sized young platelets as you see over here. The platelets are not being produced from the bone marrow. You will see the old platelets which are small and seen like this. Today's cell counter gives you certain parameters by which you are able to differentiate between inadequate production versus excessive destruction. And these are measured by two parameters called MPV and IPF, the mean platelet volume and the immature platelet fraction. When you are destroying the platelets, these are increased and vice versa. There is one more term used called reticulated platelets. Normally the platelet does not have DNA, it does not have any remnant of the nucleus. But the young platelets may have what is called reticulated platelets, which is the residual of the nucleus. Now what happens to you if the platelets are less? One thing which is well known is you get purplic spots, fatigue and the mucosal bleeding. Something which is less well known is that you get extreme fatigue. The platelet count is 10,000, you are not able to work because of the tiredness. And one thing which is still less well known is that you can get thrombosis. There are a large number of conditions where platelet count is low and there are thrombi like DIC, antiphospholipid antibody syndrome, heparin-induced thrombocytopenia and thrombotic thrombocytopenic purpura. Many do not know that platelets are a defense organ of body. कार्यक्रम के बारे में बताइए सर, क्या आज एक हेमेटोलॉजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एचपी कॉन्क्लेव 2025, जिसके अंदर देश भर से बड़े बड़े स्पीकर्स जो हेमेटोलॉजिस्ट है, रक्त विशेषज्ञ हैं, वो अपना जो व्याख्यान है वो पढ़ेंगे और हम सबको एनलाइटन करेंगे और अपडेट करेंगे इलाज के बारे में और जांच के बारे में, जिससे हम मरीज का सदृढ़ रूप से जल्दी पता लगा सकें
कि उसको कौन सा और किस प्रकार का ब्लड कैंसर है और उसकी अच्छे तरीके से हम इलाज कर सकें, क्योंकि ब्लड कैंसर में एक बात कही जाती है कि समय ही ज़िंदगी है। हम जितनी जल्दी उसको पकड़ लेंगे उतनी ही जल्दी उसका अच्छे से इलाज कर पाएंगे। और दूसरा कि फर्स्ट शॉट जो होता है दवाई का, वो सबसे अच्छा काम करता है, वही क्योर कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि वो और बेहतर हो समय के साथ, जिससे हम उसका इलाज कर सकें। कितने दिन कॉन्फ्रेंस चलेगी आपकी और क्या क्या सत्र होंगे? 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। आज हमारे सेशंस रहेंगे जिसके अंदर लगभग 20 से 25 लेक्चर्स रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक। कल सुबह हमारी वर्कशॉप है जिसके अंदर हम सिखाएंगे कि जांच जो स्लाइड होती है उसको कैसे रिपोर्ट किया जाए। डॉक्टर शशि बंसल मैडम उसको समझाएंगी सभी को। और उसके बाद में हम बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी प्रोसीजर सिखाएंगे रेजिडेंट्स को किस तरह से किया जाता है, जिससे कि वो अपने वार्ड में ही उस प्रोसीजर कर सके बजाय हमारे पास रेफर करने के। और उसके बाद में दोपहर बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया वाले वो करेंगे, PICC लाइन डलती है जिससे कि कीमोथेरेपी लेना बहुत आसान हो जाता है। तो लाइन कैसे डाली जाती है, उसकी केयर कैसे की जाती है, उसके लिए एक वर्कशॉप है जो 5 बजे तक चलेगी। कितने प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और कहाँ कहाँ से? हमारे पास अभी 350 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और स्पीकर्स में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर MB अग्रवाल सर हैं जो मुंबई से हैं, हेड हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हेमाटोलॉजी, हेड बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई, एंड ही इज़ ऑल्सो प्रेसिडेंट मुंबई हेमाटोलॉजी ग्रुप। सर इंडिया के फाइनेस्ट हेमाटोलॉजिस्ट हैं। फॉर मी ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सर MB अग्रवाल साहब, आपने बीकानेर पहली बार आना हुआ? नहीं जी, कई बार आ चुका हूँ। जब भी सर आप देश के बड़े हेमाटोलॉजिस्ट हैं, उसके बारे में बताएं कितने अब तक आपने ऑपरेशन कर दिए हैं सर, और यहाँ आकर किस तरह से लग रहा है और यहाँ किस तरह का शोध या किस तरह की चीजें मंथन पे आया है सर सामने सर? ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ब्लड डिजीजेस के ऊपर है, इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर। मैं ब्लड स्पेशलिस्ट हूँ, तो इसमें जो ब्लड कैंसर के बारे में अभी डॉक्टर पंकज तंतिया ने आपको जैसे बताया, ब्लड कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं। ये एक ऐसा कैंसर है जो बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों को सबको हो सकता है। इसके लक्षण सिंपल हैं, अगर लोगों को उसका पता हो तो वो जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। अगर किसी को बुखार है और वो जा नहीं रहा है, अगर किसी को कहीं से ब्लीडिंग हो रही है दांतों से, नाक से या माहवारी के समय और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, अगर किसी को कोई दर्द हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, किसी का वजन गिर रहा है और उसका कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लक्षण है कि आपको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। सिंपल ब्लड टेस्ट जिसको हम लोग CBC कहते हैं, उसमें पता लग सकता है कि हाँ कुछ सीरियस बात है, और फिर बोन मैरो टेस्ट से उसका कंफर्मेशन हो सकता है। अगर जल्दी ये बीमारियां पकड़ में आ जाती हैं तो इसका क्योर रेट आज की तारीख में 50 से 90% तक है, और उसका ट्रीटमेंट भी कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कार्टी थेरेपी, इस तरह के 5 से 6 ट्रीटमेंट दुनिया में है और सारे के सारे भारत में अवेलेबल हैं, राजस्थान में अवेलेबल हैं, बीकानेर में अवेलेबल है। तो लोगों को उसका महत्व समझकर उसका उपयोग लेना चाहिए। क्या कारण है सर कि ब्लड कैंसर बढ़ता जा रहा है? रीजन क्या है सर? हर तरह के कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। एक तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसमें हम कुछ टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, फैक्ट्रीज हैं, केमिकल्स हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, आप वो सांस लेते हो वो सब अंदर जाता है। फिर खाने पीने की चीज़ों में जब आपकी जो खेती होती है उसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, वो सारे केमिकल्स आपके तरकारी में, फल फ्रूट में, अनाज में, सब में आता है और आप उसको लेते हो। फिर कुछ आदतें होती हैं जिसके कारण भी कैंसर बढ़ता है, गुटखा है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब चीज़ों का सेवन भी बहुत बढ़ रहा है और बहुत कम उम्र में बढ़ रहा है। आज का यंगस्टर पार्टीज करता है, रात रात लेट तक ये सब चीज़ों का सेवन करता है, तो बहुत से कारण हैं जिससे ये होता है। किस तरह से बचा जा सकता है इससे? अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर लोगों को ये पता रहेगा कि हाँ गुटखा से नुकसान है, स्मोकिंग से नुकसान है, दारू से नुकसान है, अगर हमारी हवाएं कंटामिनेटेड हैं तो उससे नुकसान है, खाने पीने की चीज़ों में अगर कंटामिनेशन है तो उससे नुकसान है, तो बहुत स्टेप्स यूज़ की जा सकती हैं। गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जा सकता है, लोगों को अपनी अपनी आदतें सुधारी जा सकती हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल में रख सकते हैं, टीचर्स ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। तो स्टेप्स तो बहुत हैं। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े तो पिछले 50 साल में 10 फोल्ड बढ़ गए हैं जी।
एक सवाल सर ये है कि आपने कहा गुटखे बीड़ी सिगरेट से कैंसर होता है, ये जायज़ बात है, लेकिन आपने एक चीज़ और कही कि जो सलाद लेते हैं, फ्रूट हैं, फल हैं, उनमें पेस्टिसाइड्स यूज होता है। आपकी जो खेती होती है, खेती को कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड यूज होते हैं, खेती अच्छी करने के लिए फर्टिलाइजर यूज होते हैं, तो वो सारा तो फिर तरकारियों में, अनाजों में, फ्रूट्स में आता है और वो फिर लोगों को खाना भी पड़ता है। तो सर यहाँ अवेयरनेस की बात गौण हो जाती है, जो आदमी चाह रहा है अच्छे के लिए। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे है, इसको बहुत बहुत हद तक बचाया जा सकता है कि आप कौन सी चीजों से नुकसान होता है वो अपनी खेतों में मत यूज करो। सर आप देश के बड़े डॉक्टर हैं, सरकार भी आपसे कई बार सुझाव मांगती भी होगी, तो आप क्या किस तरह से सुझाव देते हैं सरकार? तो ICMR करके गवर्नमेंट की बहुत बड़ी संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो डॉक्टरों की मीटिंग करती रहती है, सुझाव लेती रहती है, गाइडलाइंस देती रहती है। तो गाइडलाइन को पॉपुलर करने के लिए उनकी वेबसाइट है, तो और एजुकेशन भी होता है, एग्रीकल्चर पूरा डिपार्टमेंट है, उसके मिनिस्टर हैं, तो प्रयत्न तो बहुत कुछ हो रहे हैं। देश बहुत बड़ा है, तो लोगों तक पहुंचते पहुंचते उसको थोड़ा समय लगता है, पर हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। नाम बताइए सर, नाम बताइए सर। डॉक्टर MD अग्रवाल, हेमेटोलॉजिस्ट, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।